Hello students, welcome to 10 minute tutorial. This is Priyanka Singh with you, and now we are going to introduce the second part of the village Palampur here. So in previous video we have already shared that what were the thing over there in the Palampur village में क्या क्या चीज़ें थी. I think I have given you the brief introduction of the village Palampur in the previous video. सो क्या क्या चीज़ें पालमपुर में थी ये मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे बता दिया था, समझा दिया था. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. So in the next part of the lesson we are going to learn about the organization of production. So before learning this you should know few things like what is production and why it is necessary, why we need it, and what are the requirements of production. So I think all of you know that in our daily life we are using many things. We are using many products. So the process by which products are going to be created is known as production. तो जिस तरीके से मतलब जो प्रोसेस होता है, जो हम लोग वस्तु जो इस्तेमाल करते हैं उस वस्तु को बनाने का जो होल प्रोसेस होता है उसको प्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, ये निर्माण कार्य के अंतर्गत आता है. तो ये आपका हो गया प्रोडक्शन. उत्पादन, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? उत्पादन कहेंगे. तो वस्तु के निर्माण का जो प्रोसेस होता है वो उत्पादन कहलाता है. दैट यू कैन ऑल्सो सी. यस, द प्रोडक्शन इज वन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वेयर वी गॉट प्रोडक्ट्स. So I hope it is clear to you. In our daily life we need many things like if you are talking about me, I need my glasses. So this is also come after the production. So in when you are waking up in the morning, you need a toothbrush, you need toothpaste to brush your teeth. So it's also coming out after the production. So this is the first thing, that what is production, and I think we clear the next part also, why it is necessary. So yes, we need many things. If we are not having if I'm not having the glasses, I will be not able to see properly. Not like I'm not blind but I'm not able to see properly. So this is important in a human life. We need food, we need shelter, we need clothes, that we have already discussed in the previous video. So these all things comes up after the production. So this is clear why it is important. So now we are going to talk about what are the requirements of production. So बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के जो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो उत्पादन के कारक, प्रोडक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. So this is the thing. I hope the video, I hope the meaning of production is clear to you, all of you. Okay, so now we are going to talk about the organization, the things that are required in a production. So these are the things that are important for the organization of production. First is land, second is labor, third is physical capital. In physical capital we are having two type of capitals, which are fixed capital and working capital, and the next one is human capital. So these four are the very important things that we are needed in production. Now let me conclude why we need land, why we need labor, why we need physical capital and the human capital in the production. Okay, let's take an example of this video only. It is also a kind of production. So for this I need a proper place where I can sit and where I can record the video. So that is the thing, first thing. And the another thing, the labor. So here I am the labor that I am working here. So I will be the labor. And the capitals. Capital, we need camera that we need in this, and the other thing that the internet, sorry, yeah, internet we need, phone we need, camera we need. So these are the things which is coming under the capitals. So in physical capital, so don't be a student get confused in a minor thing, that what is physical capital and what is the fixed capital and the working capital.
So working capital and the fixed capital are considered in the physical capital only. They are not the different things. So what is working capital and what is fixed capital? This is very important to learn. So let me first tell you why these things are important. Yes. So I need a place, proper place to record the video. I need a labor as I am the labor over here. And the things capital, I need the camera, I need the place, I need, and the internet, I need the other things also, and human capital. So human capital means the person who is planning the over things, that how we are going to organize, how we are going to create this, that can be considered in the human capital. You can see the mastermind. Yes, the mastermind, because human is going to think about the uh, the work that they are going to do. Like, if I am thinking, then I can proceed. If I am not thinking, then I can't. That's the thing. सो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपका. सो कैपिटल क्या क्या कैपिटल ज़रूरी है, लैंड ज़रूरी है, फिर ह्यूमन कैपिटल ज़रूरी है आपका, फिर फिज़िकल कैपिटल आता है. फिज़िकल कैपिटल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, जो कि एक वर्किंग कैपिटल है और एक फिक्स्ड कैपिटल है. फिर इसके बाद लेबर आता है. ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं. तो मैं आपको पहले बता दूं कि लैंड क्या है. लैंड सिर्फ वो जगह नहीं होती है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं. Land is not only that particular place. In land we consider all the things that we are having in the nature, like the plants, the mountain, the river, the ocean, and the other things that we are having in the land. मतलब धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो वनस्पतियाँ हमें मिल रही हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो नदी है, झरना है, ये सारी चीज़ें जो है वो लैंड के अंतर्गत आएंगी. ऐसा नहीं समझिएगा आप कि जहाँ पे आप बैठे हुए हैं बस वही लैंड है, जहाँ पे खड़े हैं आप वही लैंड है, ऐसा नहीं होता है. सो जो सारी चीज़ें जो हमें प्रकृति ने फ्री में दे दिया है, यू कैन गो एंड यू कैन यूज दैट. द एयर, द वाटर, द सनलाइट, ऑल थिंग्स विल बी कंसिडर्ड इन लैंड. सो फर्स्ट आई थिंक लैंड आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि लैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी. ठीक है, तो लैंड के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आएंगी जो प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया है. चल ले जा भाई, तुम अपना यूज़ कर लो जितना यूज़ करना है, और उसी को जो हम लोग सही तरीके से यूज़ करेंगे ना, वो होगा प्रोडक्शन. सो आई थिंक लैंड इज़ क्लियर. एंड द लेबर वन. लेबर, जो इंसान उस, अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो जो इंसान उस काम के पीछे लग करके उसको पूरा कर रहा है, वो लेबर है. मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है. इस मार्कर को बनाने के लिए हमें ये सारे मटेरियल्स लगे हैं. ये मटेरियल्स लगे हैं, कोई लोग भी बना रहे हैं, कोई आदमी जो है वो बैठा होगा और बैठ करके इसको बना रहा होगा. सो वो लेबर होगा. और आप सिर्फ उन्हीं लेबर के अंदर कंसिडर नहीं कीजिएगा जो कि घर बना रहे हैं. जो वो लेबर, मोस्टली लोग इसी को प्रेफर करते हैं ना, कि जो लेबर होते हैं, जो घर बनाते हैं, उन्हीं को लेबर बोलते हैं. नो, we are also labor. The human are labors. So if I'm a teacher, I'm also a labor because I'm working. I'm giving you the products. That's the thing. So the person who is working will be considered as labor. Okay. And yes, what we have cleared, the land we have cleared, and the labor. And we are coming to third point, which is physical capital. In physical capital, we are having two capitals, fixed capitals and वर्किंग कैपिटल. सो इन फिक्स्ड कैपिटल वैसी चीज़ें जो कि हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं. द थिंग्स, द कैपिटल विच कैन यूज़ अगेन एंड अगेन. ओके, लेट्स कम टू द मार्कर अगेन. दिस इज द मार्कर. द आउटर पार्ट वी कैन यूज़ अगेन एंड अगेन, बट द इनर पार्ट, द इंक वन वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट. इस मार्कर को हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसके अंदर जो इंक लगा है वो हम लोग उसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. सो मार्कर जो हमारा हो गया, और जो बोर्ड मैं यूज़ करूँगी या कोई भी जो यूज़ कर रहे हैं बोर्ड, वो क्या हो गया, एक फिक्स कैपिटल हो गया. अब ये जगह, ये जो मेरा घर है, ये फिक्स्ड कैपिटल है. ऐसा नहीं है कि आज मैंने इसको यूज़ कर लिया, कल अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती, ये वेस्ट हो गया. ऐसा तो नहीं है.
तो ये फिक्स्ड हो गया है कि हाँ इसको मैं हमेशा यूज़ कर सकती हूँ बार बार। हाँ भले इसे रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल जो हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल वो होता है जो हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कैश कैश हम लोग देते हैं। जैसे मैं इंक लाऊंगी तो मैंने कैश दे दिया, तो वो वर्किंग कैपिटल के अंदर में आ गया। फिर इंक भी जो है वो इंक को हम लोग अगर एक बार बोर्ड पे लिख दिया उस इंक से, तो वापस से वो इंक को हम लोग इसमें फिल तो नहीं कर सकते ना। सो वो इंक भी क्या हो जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अलग से भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे काम हो रहा है, तो इस कंस्ट्रक्शन साइट को समझना थोड़ा आसान हो जाता है सारे प्रोडक्शन को लेकर के। जैसे कि एक प्लॉट ले लिया गया, ठीक है, वो प्लॉट हो गया, तो पहला लैंड की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, और सीमेंट वगैरह जो यूज़ किया जा रहा है एक बार में यूज़ हो गया। एक बार जो सीमेंट जो दीवार में लग चुका है, क्या हम उसको वापस से यूज़ कर पाएंगे? नहीं, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक है, और जो दीवारें बन रही हैं वो हो जाएगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल, जो हम दीवार को हम लोग बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फार्मिंग का। सो फार्मिंग का एग्जांपल लेते हैं। लैंड है हमारे पास, हमने बीज लगा दिया। अब एक जो बीज लगा दिया उससे जो प्लांट आ गया, क्या उसी बीज को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं? नहीं, तो वो बीज जो हो गया वो आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। लैंड हमारा लैंड का लेकिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। आई होप कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल आप लोग का क्लियर हो गया। लैंड क्लियर हो गया, लेबर क्लियर हो गया, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल क्लियर हो गया, यानी कि फिजिकल कैपिटल आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल पे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इन ह्यूमन कैपिटल द पर्सन इज बिहाइंड द एवरीथिंग। मुझे खेती करनी है, ऐसा सोचा होगा किसी ने, तभी ये डेवलप कर पाया। इन एंशिएंट टाइम में किसी ने ऐसा सोचा होगा कि हाँ चलो ऐसे पत्थर को रगड़ के देखते हैं क्या होता है, तो मे बी ऐसा चिंगारी आया, कुछ भी उन्होंने ऐसा सोचा, फिर उनका धीरे धीरे माइंड डेवलप हुआ। तो किसी भी काम के पीछे एक आदमी लगा होता है जो कि ह्यूमन कैपिटल होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब होता है तो वो ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत ही चलता है, वही उसको चला सकता है। तो जो सोच है ह्यूमन की, दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल। सो यहाँ पे सिर्फ लेबर ही नहीं है, ह्यूमन जो है ह्यूमन कैपिटल भी है, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है ह्यूमन कैपिटल को बनाने में। इसीलिए फूड, क्लोथ और हाउस के अलावा एजुकेशन को और हेल्थ को भी जो बेसिक नीड है, फंडामेंटल नीड्स है, उसमें जोड़ा गया। सो आई होप कि आपका आज का जो ये टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमें कुछ चीज़ें चार चीज़ें पढ़नी थी, जो कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये आप लोगों का क्लियर हो गया हो। सो आज का वीडियो हम लोग इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई वांट टू ग्रो हियर, हेल्प मी to grow on the YouTube. Thank you so much. Bye bye. Take care.